velocity of a particle is given by v is equal to root over 180 minus 16x meter per second. Its acceleration. Students, this equation can be compared with a equation of with there are four type of equations of motion. Let's see with which equation it is comparable. Okay, so let's see, students. It is written like this: v is equal to root over 180 minus 16x, correct? Yes, sir. So let's make square both sides. So we can write b square is equal to 180 minus 16x, correct? Yes or no, students? Yes or no? Students, you know one equation, v square is equal to u square plus 2s. You know equation or not? V square minus u square is equal to s. And by taking to other side, v square is equal to u square plus 2s. Yes or no, students? Yes, sir. Can we compare? See here, v square is there. In place of v square, you would just write 180, correct? And 16x, that is 2as. Yes or no, students? So you can write 2a is equal to how much, students? Minus 16. Na? You can write or not. See, this is 2s, this is 16x. Just 2a take out, then kitna, how much left in place of s? 2a will be equal to how much? Minus 16. Na? Because this is the Yes. displacement x. Yes or no? Yes. So a is equal to how much? Minus 8 meter per second square. Correct. So that will be the correct option. Option A, correct? Understood, students? Students, the velocity of a bullet is reduced from, see question number 14, is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. The retardation assuming to be how much? Very easy, students. Question number 14, let's see. Student, initial velocity of the bullet is given how much? 200 meter per second, correct? Yes or no? Yes, sir. वेलोसिटी कितना डिक्रीज होके हुआ 100 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? डिस्टेंस हाउ मच ट्रैवलिंग, स्टूडेंट्स? 10 सेंटीमीटर गिवन ना, और मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना होगा? 0.1 मीटर, करेक्ट? यस सर, नो? So by putting v square minus u square is equal to 2as, we can get a is equal to how much? V square minus u square by 2s, correct? Yes or no? So that is 100 square minus 200 square, correct? Divided by 100 square minus 200 square divided by 2 into 0.1. You solve for it, you will get 10,000 minus 40,000, okay, divided by 10,000 minus 40,000 divided by 2 into 0.1, that is equal to minus 30,000 divided by 2. Yes or no, students? So that is how much? Minus 15,000. 150,000. Okay, this is not 30. This is, 10,000. Okay, so that is equal to approximately, it will become 1.5 minus 1.5 into 10 to the power 4. Yes or no, students? Meter per second square. सर 1.5 10 to the 5 होगा. नहीं, ये 30,000 है ना. 40,000 minus 10,000, that is 15,000, correct? सर 15,000 का पॉइंट लिए तो 5. ओह सर लास्ट में 0 नहीं. नहीं, 15,000, ठीक है. 30,000 है ना. 40,000, this is double zero था, 200, 100 है. Yes, sir. Yes. So 1.5 into 10 to the 4 meter per second square. Okay, this is the thing.
सर आई थिंक आपने म्यूट किया है. स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विथ मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, सो स्टूडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी को हम दो हिस्से में डिवाइड किए गए, मतलब किए हैं. जैसे कि लेट एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किए. ठीक है, लेट्स से बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना. नहीं तो फिर एक बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, करेक्ट, और एक बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली. तो इसीलिए उस पे दो टाइप का मोशन है. एक है प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, यस और नो. नंबर वन, body projected, right? Body projected vertically downward, और उसको कहते हैं स्टूडेंट्स फ्री फॉल. जब हम एक बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होकर आता है अर्थ की तरफ. ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल. ठीक है ना. नेक्स्ट नंबर टू पे, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. तो ये दो केस को हम इन डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उसके पीछे क्या मैकेनिक्स है, कैसे उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, और सारे इक्वेशंस को कैसे हम रिफॉर्म करेंगे वही हम देख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर वन पे हम चलते हैं फ्री फॉल केस के ऊपर. ठीक है, बॉडी फॉलिंग फ्रीली. फ्री फॉल मतलब बॉडी फॉल्स फ्रीली. बॉडी फॉल्स फ्रीली, करेक्ट. जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सी ये एक बॉडी है. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर हाइट से बॉडी जो है ना वो फ्री फॉल कर रहा है, करेक्ट. दिस इज फ्री फॉल. Free fall means students no initial velocity is given, so that's why u is equal to 0, correct. और ये जो हाइट है मान के चलो ग्राउंड लेवल से वो हाइट h है ना. और बॉडी जब यहाँ पर पहुंचेगा लेट उसका वेलोसिटी v है, करेक्ट. और टाइम जो ले रहा है वो t टाइम लेके चल रहा है. मान के चलो यहाँ से t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया था और यहाँ पर नीचे पहुंचते वक्त उसका टाइम उसने t लिया, करेक्ट. एंड सबसे बड़ा बात है कि बॉडी जब अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आ रहा है, सो देयर इज समथिंग यू नो इन योर क्लास 9th also you have learned all those things, and that acceleration is acceleration due to gravity. In details we'll learn about in gravitation chapter about the value of g, how it came, how it varies with the different position of earth. We'll see that. And there is here the acceleration is nothing but that is g, that is acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity, correct, yes sir. Student, acceleration due to gravity is symbolized as g. Its value is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस सर नो. तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली हम ये भी लिख सकते हैं कभी कभी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वेक्टर की रेस्पेक्ट में हम इसको प्लस या फिर माइनस भी हम ले सकते हैं. वी कैन आल्सो टेक इट प्लस एंड वी कैन आल्सो टेक इट माइनस एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, उस पे आंसर्स की कोई वेरिएशन होने नहीं जाएगा, बट इस तरह मान के चलो वो हम देखेंगे पहले उसको. मतलब अगर नीचे की तरफ मैं प्लस मान के चल रहा हूँ तो ऊपर की तरफ जब मोमेंट को एनालिसिस करूंगा तो उसको नेगेटिव मान के चलूंगा. अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मैंने उस नीचे की तरफ को अगर मैंने नेगेटिव मान के चला तो उसी केस में ऊपर की तरफ जो होगा उसको मैं क्या मान के चलूंगा, पॉजिटिव मान के चलूंगा. तो ये वेक्टर्स की चीज भी अप्लाई होगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे. बट अभी फिलहाल आप बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड, तो चलो जी ए इज इक्वल टू जी, दैट इज पॉजिटिव मान के चलते हैं फिलहाल. बाद में भी हम जरूरत के हिसाब से हम उसको नेगेटिव भी मान सकते हैं, देखेंगे उस पे क्वेश्चन के एनालिसिस पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा. ठीक है, सो दैट इज a इज इक्वल टू g, दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, एंड s जो है हाइट जो है हमने उसको h ले लिए. ठीक है, जो हाइट था उसको हमने h ले लिया. आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी हियर वी हैव टेकन इट एज h, करेक्ट. द हाइट वी हैव टेकन एज h. तो अभी सारे इक्वेशंस अगर मैं लिख दूं, पहला इक्वेशन स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं, v इज इक्वल टू हाउ मच, u प्लस at, करेक्ट. तो v इज इक्वल टू u 0 है, a g है तो t, तो v इज इक्वल टू gt. एक इक्वेशन बन गया फ्री फॉल के लिए. मतलब अगर कोई भी बॉडी यहाँ से अगर फ्री फॉल कर रहा है, अब देखो यहाँ से कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, करेक्ट. और मैंने अलग अलग टाइम पीरियड ले लिया. लेट यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, करेक्ट. यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. लेट ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते उसकी टाइम ले लिया मैंने 3 सेकेंड. ठीक है,
तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ओवर हियर, देन व्हाट यू विल राइट? सर v at 1 second is equal to 10 into 1. मैं g 10 लिया हूं, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? अगर 2 सेकंड की बात किया जाए तो v2 is equal to 10 into 2, that is 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? That is t is equal to next 3 second में, then student v3 is equal to how much? 10 into 3, that is 30 मीटर पर सेकंड. तो इस तरह जितना वेलोसिटी नीचे की तरफ बॉडी जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज होते होते जा रहा है. तो v is equal to gt से हम ये चीज देख सकते हैं. यस सर, जस्ट नोट इट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट सी, अगर हम नीचे की तरफ, मैंने ये फ्री फॉल वाला केस बताया, ठीक है? अगर मैं नीचे की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, इफ आई एम थ्रोइंग ए बल्ब इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, मैंने इस बल्ब जो है ना, मैंने इसको डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे थ्रो किया, तो फ्री फॉल नहीं हुआ ना, तो कुछ यू में मैंने इसको थ्रो किया, करेक्ट? एंड दिस इज एच. यस सर, नो स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं? और वेलोसिटी जो है, अगर फ्री फॉल है तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि u इज इक्वल टू हमने जीरो डाले. अगर फ्री फॉल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ वी स्क्वायर था हमारा सेकंड इक्वेशन, है ना? तो u जीरो डाल दिया तो ये वाला इक्वेशन आ गया. इफ u इज नॉट जीरो, देन हम क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, करेक्ट? लिखेंगे कि नहीं? सो लाइक दैट वेलोसिटी जो था वो भी हम जीरो, अगर जीरो नहीं है तो v इज इक्वल टू u प्लस gt ऐसे भी लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट? u Yes, इज sir. इक्वल टू जीरो आप ले रहे हो तो एक स्पेशल केस के अंदर आ रहा है ना? ये सर नो. Yes, sir. अगर हम u जीरो नहीं लेंगे तो वो क्या होगा? v इज इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा और h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा. ये सर नो. अगर मैंने कुछ u वेलोसिटी में उसको थ्रो किया, जीरो ना होके मैंने कुछ 20 मीटर पर सेकंड पे लेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहां पर u तो जीरो नहीं लेंगे ना, मैं नीचे की तरफ थ्रो किया हूं. अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ पा रहा है स्टूडेंट? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, थोड़ा इसको मैं इक्वेशन में दिखाता हूँ. जस्ट लेट मी टू सी. ये जो हाफ जीटी स्क्वायर वाला चीज है ना, लेट बॉडी फ्री फॉल कर रहा है यहाँ से, करेक्ट? और ये ग्राउंड है ना? हियर u इज इक्वल टू जीरो और t भी इज इक्वल टू जीरो है. मान के चलो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिया, t इज इक्वल टू 1 सेकंड. लेट मैंने यहाँ पर एक लिया, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकंड. और लेट ग्राउंड पे मैंने लिया t इज इक्वल टू 3 सेकंड. ये सर नो. तो स्टूडेंट ये जो हाइट है मान के चलो 1 सेकंड पे h1 है, ये जो हाइट है मान के चलो h2 है 2 सेकंड पे, ये पूरा ऊपर से नीचे की जो हाइट है, लेट दैट इज h3. गेटिंग और नॉट? उसको अगर मैं एक एक करके निकालूं तो h1 इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ इनटू g इज 10 into 1 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 5 मीटर, करेक्ट? और h2 कितना होगा? दैट इज हाफ इनटू 10 into t का स्क्वायर. t मतलब 2 हो गया, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फिर? 20 मीटर, है ना? लाइक दैट h3 कितना होगा? मतलब ये डिस्टेंस जो है ना, वो पूरा शुरू से टॉप से, तो t3 इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ इनटू 10 into 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 45. 45 मीटर. अंडरस्टूड? तो ये जो हुआ ये 5 मीटर हुआ, ये जो हुआ 20 मीटर हुआ, ये जो हुआ 45 मीटर हुआ, करेक्ट? ये सब नो स्टूडेंट्स. अगर उसने पूछा कि 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना गया है, तो क्या होगा? ये 20 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर ना, करेक्ट? अगर पूछेगा 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना गया है, तो टोटल कितना है? ये 20, ये टोटल कितना है? 45. तो ये वाला कितना हुआ? 25 मीटर ना. समझ पा रहा है स्टूडेंट्स? गेटिंग और नॉट? Yes, sir. So स्टूडेंट, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर मैं यहाँ पर देखूं 5, 20, 45 है कि नहीं, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो वी कैन राइट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, राइट? फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, for a freely falling body, the ratio of distances traveled, the ratio of distances traveled
the ratio of distances traveled in 1 second, 2 second and 3 second, ठीक है? In 1 second, 2 second, 3 second, ठीक है स्टूडेंट्स? तो कितना होगा देखो, 5 4 45 अगर इसको मैं रेशियो में निकालूं तो 5/20 कितना है? 4 है ना, 1 4 5/45 कितना है? 9 है ना स्टूडेंट्स? यस सर नो? So that will be in the ratio of 1:, आप देख सकते हो कंपेयर करके 4:9:16 डॉट डॉट, it will be in this sequence. अगर मैं सक्सेसिव टाइम डिस्टेंस की बात करूं, मतलब हर एक मिनट पे इंटरवल में, तो देखो 5 नेक्स्ट आया कितना, 5 × 3 15, नेक्स्ट कितना आया 5 × 4 40, सॉरी 25, 5 × 5, समझ पा रहा ना? पहले एक सेकंड में 5, दूसरा नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट 1 to 2 सेकंड के बीच में कितना गया 15, दैट इज 5 × 3, नेक्स्ट 2 to 3 में कितना गया 25, दैट इज 5 × 5. यस सर नो? गेटिंग और नो स्टूडेंट्स? सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में अगर वो पूछा है the ratio of distance traveled in successive seconds, yes sir, no, so right, for a freely falling body, the ratio of distance traveled, the ratio of distances traveled, right, in successive seconds, it will be how much students? 1:3:5:9. आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हो और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है? अगर दो टाइम गैप के बीच में दिया गया है कि मतलब मान के चलो इसने इस तरह दे दिया कि यहाँ से बॉडी फ्री फॉल किया, करेक्ट है ना, और कुछ इस टाइम पे दे दिया उसने, यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, तो उसने पूछ लिया कि t2 और t1 में के बीच में कितना डिस्टेंस गया है, तो हम क्या करेंगे, हाफ GT², दैट इज हाफ g, ठीक है, t2² माइनस t1², इसी लॉजिक पे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं. ये सब नो, कुछ भी गैप दे, 3 to 5, 4 to 6, एनी टाइम ही कैन गिव. ये सब नो स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टूडेंट देखो यहाँ पर h इज इक्वल टू, हमें क्या पता चला, हाफ GT². अगर कहीं पे टाइम पूछा है तो t² इज इक्वल टू हाउ मच, 2h/g ना, है ना? सो t इज इक्वल टू हाउ मच, 2h/g का रूट ऑफ. सो दिस इज द लिंक. अगर हमें h पता है तो हम बता सकते हैं कि अगर वो फ्री ऊपर से फ्री फॉल किया है तो वहां पर कितना टाइम आया हो, करेक्ट? तो अगर मुझे टाइम निकालना है, लेट दो टाइम की गैप दिया हुआ है, तो अगर मुझे t निकालना है तो 2h2/g minus 2h1/g, correct? Yes or no students? So if I will take 2/g common, I can get how much? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं अलग करके तो I can write it as 2/g root over of h2 minus root over of h1, correct? Yes or no student? Just note it. And distance traveled in n second में भी एक इक्वेशन है, that is you know normal equation is s is equal to u plus a/2 into 2n minus 1, ठीक है? अगर हम उस nth की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u 0 है फ्री फॉल में, that is g/2 into 2n minus 1. उसी रेस्पेक्ट में भी आप देख सकते हो. अब असाइनमेंट की कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना, कल हम उसको डिस्कस करके एडिशनल कुछ प्रॉब्लम्स में बताऊंगा, ठीक है? देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. मैं एकदम मतलब बेसिक्स बता रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी की, जो 4 इक्वेशन बन सकता है उसकी मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टूडेंट थोड़ा चलते हैं, गिव मी 2 minutes. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली ऑफ, ठीक है? बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड और बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. बॉडी प्रोजेक्टेड, राइट, बॉडी प्रोजेक्टेड vertically upward, correct? Body projected vertically upward. Yes sir, no students? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम डाउन, जब बॉडी जब नीचे की तरफ आ रहा था तब हमने जी को क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे. अब अगर मैं बॉडी को, अगर एक ग्राउंड रेफरेंस से, अगर मैं इसको ग्राउंड रेफरेंस से अगर मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर यू हो गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बॉडी जा रहा है, तो स्टॉप फोर्स पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैंने फेंक दिया और बॉडी इन्फिनिटी तक चला गया, तो कुछ एक टाइम के बाद बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाएगा फाइनल, और उसी टाइम पे उसने मान के चलो कुछ टाइम भी स्पेंड हुआ है और कुछ डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है. तो सारे इक्वेशंस अगर हम रीअरेंज करके लिखेंगे
तो जो पहला इक्वेशन हमारा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें क्या चेंजेस आएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, कोई एक टाइम इंटरवल पे। और उसी पे अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं, एट मैक्सिमम हाइट जब बॉडी को हम फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, then we can write 0 is equal to u minus gt. So that is ta उसको बोलते हैं time of ascent, time taken to reach maximum height, that is known as time of ascent. उसको क्या बोलते हैं, time of ascent, time of ascent। ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चंस की एप्लीकेशन होगा। उसका मतलब ये है कि अगर मैंने क्वेश्चन पे आपको दे दिया कि बॉडी को ग्राउंड के रेफरेंस से 20 मीटर पर सेकंड पे फेंका जा रहा है, तो ये कितने टाइम पे जाके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब वहां पर v जीरो होगा कितने टाइम के बाद। सो दैट इज टाइम ऑफ ascent, ta इज इक्वल टू u इज गिवन 20, g इज इक्वल टू 10। तो 2 सेकंड के बाद वो ऊपर पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। यहाँ पर अगर t इज इक्वल टू 0 से मैंने थ्रो किया तो यहाँ पर वो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में कर सकता है ना। सो मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट इज टाइम ऑफ ascent, दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड, करेक्ट। सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इफ आई से अबाउट द सेकंड इक्वेशन, तो दैट इज s इज इक्वल टू हाउ मच, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऐसे नॉर्मल है, बट यहाँ पर तो हम अब इसको कन्वर्ट कर देंगे ना, उसको हम लिखेंगे h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर कर देंगे, करेक्ट। कितना डिस्टेंस जा रहा है अगर हमें पूछा गया होगा तो हम ये फॉर्मूला डाल के उसको निकालेंगे, है ना। थर्ड इक्वेशन ठीक इसी तरह है स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्या है हमारा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, करेक्ट है ना। सो दैट इज v स्क्वायर minus u square is equal to minus 2gh, we can write like this, करेक्ट। उसको अगर मैं स्पेशल इक्वेशन की फॉर्मेट पे लिखूं, मतलब स्पेशल इक्वेशन मतलब एट मैक्सिमम हाइट, यू नो, एट मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स हाउ मच, जीरो। तो अगर जीरो पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, यस सर नो। तो अगर मैं दोनों को कैंसिल कर दिया तो दैट इज h इज नॉट नॉर्मल, दैट इज h मैक्स। सो h मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो गया मेरा, u स्क्वायर बाय 2g, है ना। वही जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड पे उसको थ्रो कर रहा हूँ तो ये कितने हाइट जाने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब कितने हाइट जाने के बाद v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस पे अगर डालेंगे तो h max इज इक्वल टू हाउ मच, u स्क्वायर दैट इज 20 into 20 by 2 into 10, करेक्ट। दैट इज हाउ मच, 400 by 20, दैट इज 20 मीटर। तो ये 20 मीटर जाने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, करेक्ट। समझ पे आ रहा है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन जो आपने, तो फोर्थ इक्वेशन जो आपने बताए थे लास्ट क्लास, हमने जो बताया था, एस एल इज इक्वल टू यू माइनस हो जाएगा जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इसी इक्वेशन को डाल के हम कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट। यू कैन डू दिस इक्वेशन आल्सो, करेक्ट। और एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जस्ट सी हियर स्टूडेंट, अगर मैं उसका पूरा मोशन को अगर मैं एनालिसिस करूं, बॉडी यहाँ तक गया, करेक्ट, ये है एच मैक्स, है ना। यहाँ पर मैंने यू वेलोसिटी थ्रो किया, यहाँ पर वी जीरो हो गया। एक बार यू वी जीरो होने के बाद बॉडी तो स्टॉप नहीं हो जाएगा ना, फिर से उसका वहीं से फ्री फॉल वाला चीज स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम देयर ओनली अगेन इट विल स्टार्ट द मोशन ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। और जब फ्री फॉल होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर जाने के लिए जो टाइम है टाइम ऑफ ascent, आने के लिए जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। और टाइम ऑफ ascent आपने क्या निकाले थे, u बाई जी, करेक्ट। ये हमने निकाल देते अभी अभी निकालते थोड़ी देर पहले, ठीक है। और अभी अगर मैं एच की बात करूं तो एच इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। और ऐसे भी अभी आपने एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g निकाल लिया हमने स्पेशल केस पे, है ना। जब फ्री फॉल कर रहे हैं एच इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, जब ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वही तो एच है ना, वो यू स्क्वायर बाई 2g, यस सर नो। सो आई कैन राइट हाफ जी टी डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि दोनों तो एक ही हाइट है ना। तो अगर मैं टी डी स्क्वायर को एक साइड में रखूं टाइम ऑफ डिसेंट, तो उस साइड पे 2 कैंसिल, सो दैट विल बी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सो ओनली टाइम ऑफ डिसेंट की अगर बात होगा तो दैट इज आल्सो u बाई जी, मतलब जाने के लिए ऊपर जितना टाइम लगेगा आने के लिए भी उतना टाइम लगेगा। दैट इज टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू ऑलवेज टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू ऑलवेज u बाई जी, करेक्ट, अंडरस्टूड। और स्टूडेंट जाने आने की जो टाइम है ना, इससे बॉडी गया ऊपर फिर वापस आ गया, ठीक है। तो ये जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं उसको, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t, that is equal to time of ascent plus time of descent, that is u by g plus u by g, that is
2u by g, ये भी याद रखना होगा हमें। एकदम बेसिक चीज में बता रहा हूँ, आप जैसे कि आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और जहां पर क्वेश्चन की डाउट होगा फिर हम उसके साथ कंसेप्ट को जोड़ते ही रहेंगे। ठीक है, कल हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट की प्रॉब्लम भी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जस्ट राइट इट स्टूडेंट्स।